Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and it's the first lecture and introduction. So we will go briefly into the course contents and a bit of introduction with digital image processing, what it means, and where we can use it, the applications, and also a little bit of image understanding, that how images are and how we can represent it. So first of all, I will give my introduction. My name is Dr. Asad Ali Safi, and I am assistant professor at ComSets University, Islamabad campus. And I have done my PhD in machine learning in artificial intelligence. It's a subfield of AI. I did a lot of work with images because most of my work is on medical imaging, and for that we have to do many diagnosis and pre and post operative image analysis and many other things. So this is my brief introduction, and we will go further on for the course description. So as you know, the course we call it Digital Image Processing, and the course code is CSC331, and it's a 3-credit-hour course. So this means that it's completely the lectures, and we will go through only to the lectures, so there will be no lab works. And what we will actually going to cover in this course, so this course covers the fundamental concepts related to digital images and their processing. So what are the basic concepts, the basic understanding of different algorithms, and how the images are, how we call videos, so how the videos are, frame by frame and images. So we will discuss it in detail, and then including image processing fundamentals. So then we will understand what are the processing methods, how to process image, how many algorithms there are, how many methods do we have, and again image pre-processing techniques. So if we want to do some noise removal, some other kind of filtering, then for that we call it pre-processing. So this kind of algorithms and understanding, we will do it in this section. And image segmentation. So what is segmentation? How do we make parts of the images? How do we take our meaning, or what we want to take from the image? How to understand the image? For that we need to make in small pieces. So this is called more or less the segmentation. We will go in detail. Then again, image compression, how we can minimize the image, where the images can be squeezed or to be made small, so that it can be transmit to the media, or maybe for archive to store it for a long period, and then when we want to recover it, then again use the same algorithm or the compression technique in reverse, and then put the image back again. Then image representation, so how the images are represented, how the formats are, how its dimensions are. So all these things we will discuss it. And image descriptions, so again the details of the images, the formats, and again how it's stored on the drive, and all these descriptions we will discuss it. Object recognition, and again once we have the images in segmented form, we remove the noise and all the other filters we applied on it. Then after that we make the object recognition for machine understanding or automated understanding, because we will go in detail
when we are making the introduction, that how many images do we have and why do we need it. So in that situation, there are some types that machine needs to understand the image, and for that we need to understand the objects in the image. So once we understand it, then we can take our meanings out of it, or we can take use of it. So all this is we will be covering in this course. There will be bit more stuff in it, but a bit in brief manners, and some other related things we will discuss it further on. So if we want to go for the definition of digital image processing, definition of the image processing is hidden in the digital image processing topic. So what are the basic fundamentals of the digital image processing is, first is the processing. So if we look into the topic digital image processing, so we take the processing, then again there is image, and then again there is another main term which is called digital. So processing of images which are digital in nature by digital computers. So we use the computers and we process the images which by nature are digital, and we make this processing for different reasons, for understanding of humans, for machines, and some other reasons that we will discuss it. बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है कि हम जब इमेजेस को लेते हैं जो कि डिजिटल हों, जो प्रिंटेड फॉर्म में ना हो, जो कि हार्ड फॉर्म में ना हो, डिजिटल फॉर्म में इमेजेस हों, और उन इमेजेस को हम प्रोसेस करें, उसके ऊपर कुछ मेथड्स अप्लाई करें, उसके नॉइज़ रिमूव करें, या कुछ और डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो अगर हम उनको अप्लाई करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है. और हम नॉर्मली हम ये सारा काम कंप्यूटर में करते हैं, और वो कंप्यूटर भी मोस्टली डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं. सो व्हाई डू वी नीड इमेज प्रोसेसिंग? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इमेज प्रोसेसिंग की? हम इसको ऐसे भी तो यूज़ कर सकते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो बेसिक रीज़न जो है उसकी, वो 3 मेजर एप्लीकेशंस है. मोटिवेशन बाय 3 मेजर एप्लीकेशंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन फॉर ह्यूमन परसेप्शन. अब हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? एक बेसिक वजह यह है कि हमें उस इमेज से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेनी है, और वो इंफॉर्मेशन हम कैसे ले सकते हैं? अगर तो हम उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करें, अगर हमें कुछ इमेज साफ नज़र नहीं आ रही और हम उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहें, तो ह्यूमंस के लिए हम उसको क्लियर करते हैं, उससे नॉइज़ रिमूव करते हैं, उसके कलर्स को इन्हांस करते हैं, या और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करते हैं. तो ये एक रीज़न है कि हमें इसलिए चाहिए कि ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड कर सके, उससे अपनी इंफॉर्मेशन ले सके. दूसरी रीज़न क्या हो सकती है? ऑटोनॉमस मशीन एप्लीकेशंस के मशीन्स के लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो. वो अगर ऑटोमेटिक रिकग्निशन करनी है कंप्यूटर ने या किसी मशीन ने, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. आपने देखा होगा कि नॉर्मल आजकल छोटे से छोटे कैमरे में भी वो फेस रिकग्निशन आ जाता है. जब आप इमेज ले रहे होते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है. तो ये क्या है? वो इमेज प्रोसेसिंग हो रही है इसके ऊपर, वो आपको बता देता है कि यहाँ पर फेस आपके पास आ रहा है. तो ये मशीन अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो मशीन या मोबाइल फ़ोन या कैमरे ने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर फेस है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग हुआ है. फ्रेम बाय फ्रेम हर एक इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग के बाद वो ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई कर लेता है. तो हमें एक उसके लिए चाहिए होगा. और तीसरा क्या हो सकता है? एफिशिएंट स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन. तीसरी रीज़न ये हो सकती है कि हम उसको स्टोर बेहतर तरीके से करते. कुछ इमेजेस काफ़ी हैवी होती हैं, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो रिडंडेंट होती है, वो बार बार आ रही है. फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि अगर स्काई है तो स्काई का ब्लू कलर है, सारे एक जगह पर ब्लू ही आ रहा है, तो हम उस ब्लू का एक सैंपल ले लेते हैं और बाकी सारा को हम स्टोर नहीं करते. तो उस सैंपल का
हम लोकेशन बता देते हैं कि फ़लानी जगह तक ब्लू स्काई है, तो वो दोबारा जब रिस्टोर करेंगे तो वो वहाँ पर हम डाल लेते हैं। या और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हम ये क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास स्टोरेज के लिए कम जगह यूज़ हो। सेकंड क्या हो सकता है? ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसमिशन क्या है कि अगर हम थ्रू कम्युनिकेशन लाइन कहीं पर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम उसको कंप्रेस कर लें और उसका साइज़ छोटा कर लें तो हम उसको ट्रांसमिट करके दूसरे साइट पे जब पहुंचता है तो हम उसको दोबारा एक्सपेंड कर दें, या अगर हम उसी तरह अंडरस्टैंड करना चाहें, डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, अगर इमेज बहुत ज़्यादा हो, आपने देखा होगा कि अपलोड करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से अगर उसका साइज़ हम कंप्रेस कर लें, उसको छोटा कर लें, तो वो बहुत इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये 3 मेजर मोटिवेशंस हैं इमेज प्रोसेसिंग के लिए। अब हम इसके थोड़े सा डिटेल में जाएंगे कि हम ह्यूमंस के लिए कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम मशीन कहाँ पर यूज़ करते हैं, और फिर अगर स्टोरेज के लिए है तो वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, ह्यूमन परसेप्शन। So this is the first motivation that why do we need to have human perception method for enhancing particular information for human interpretation and analysis। अब ये बहुत अहम पॉइंट है कि हमारे पास डिजिटल इमेजेस हैं और हम ये चाहते हैं कि उसको ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल कर लें ताकि वो समझ सके। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कॉमन एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? नॉइज़ फिल्टरिंग। अगर हम उससे नॉइज़ रिमूव करना चाहते हैं, ये उसका बेसिक एप्लीकेशन हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आ जाती हैं जो ब्लर होती हैं, जिसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हम उसके लिए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम उस पर कुछ प्री प्रोसेसिंग करते हैं। तो उसके लिए हम डिफरेंट फ़िल्टर यूज़ करेंगे, वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। कंटेंट इन्हांसमेंट, हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो उसके कंटेंट्स हैं वो उनको और भी बेहतर कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक इमेज है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एजेस आ रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट्स को बेहतर कर लें किसी तरीके से, हम मुख्तलिफ़ प्रोसेसिंग कर सकते हैं उसके ऊपर, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हम उन कंटेंट्स को और भी बेहतर कर लें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसका कलर बेहतर कर लें, उसका कंट्रास्ट बेहतर कर लें, उसकी ब्राइटनेस बेहतर कर लें। तो ये सारी चीज़ें हम डिफरेंट फ़िल्टर लगा सकते हैं, उसके ऊपर मेथड्स लगा सकते हैं। तो सेम अगर हमने कोई इमेज है वो ब्लर है, हम उसको डी ब्लर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो। और थर्ड ये हो सकता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग हम और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। रिमोट सेंसिंग ये हो सकता है कि हम कोई सैटेलाइट इमेजेस लेते हैं और वो हमें यूज़ करना हो, लेकिन हम उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं ताकि वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सके। या रिमोट सेंसिंग में हम यही कहेंगे कि किसी दूर जगह से जब हम इमेजेस लेते हैं, कोई सैटेलाइट हो सकता है, कुछ हमारे पास सर्विलेंस कैमराज हो सकते हैं, तो इसके लिए जब हम यूज़ करेंगे तो वो और उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसिंग करेंगे तो हम उसको रिमोट सेंसिंग में कंसिडर करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है नॉइज़ फिल्टरिंग के लिए। अगर आप देखते हैं कि इमेज जो है लेफ़्ट टॉप पे, तो वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी इमेज है, उसमें कुछ नॉइज़ आ रहा है, उसमें इमेज क्लियर नहीं है। लेकिन हम जब उसके ऊपर कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं और उसका नॉइज़ रिमूव करें तो वो हमारे पास राइट बॉटम पे जो इमेज है वो हम कुछ इन्हांसमेंट के साथ, तो अगर हम देखें तो हम और क्लियरली उस इमेज को देख सकते हैं। और हमारे पास कंट्रास्ट की इमेज है। अगर हम देखते हैं कंट्रास्ट इन्हांसमेंट्स के लिए, तो जो लेफ़्ट टॉप पे इमेज आ रही है हमारे पास, तो अगर आप देखें लो कंट्रास्ट इमेज है जो फर्स्ट इमेज है टॉप पे, तो यहाँ हम देखें तो हमें काफ़ी डिटेल नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर कुछ लेक है, वाटर है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा, ना हमें यहाँ की बाउंड्रीज़ नज़र आ रही हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसमें कुछ इन्हांसमेंट लाते हैं कंट्रास्ट के लिहाज से, तो अगर आप देखें यहाँ पर हमें काफ़ी डिटेल नज़र आ रही है, वाटर लेवल भी नज़र आ रहा है और भी हमें इंफॉर्मेशन, यूज़फुल इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है।
तो ये अगर हम इसमें कुछ कंट्रास्ट की इन्हांसमेंट लाते हैं तो क्योंकि अगर ये ओरिजिनल इमेज है, इसके प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है, तो ये इमेज किसी रीज़न से कोई बेहतर क्वालिटी का नहीं था, तो जब हम इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे तो वो कुछ अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, उसमें कुछ चीज़ें क्लियर नज़र आ जाती हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अगर कलर इमेज लेते हैं तो कंट्रास्ट इन्हांसमेंट में लो कंट्रास्ट इमेज है यहाँ पर, तो ये बहुत ब्लर है, हमें कुछ डिटेल नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब हम उसमें कुछ एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, फ़िल्टरिंग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बहुत क्लियरली इन्हांस्ड इमेज है और हमें उसकी फर्दर डिटेल्स नज़र आ रहे हैं। सेम यहाँ पर डी ब्लरिंग की सिचुएशन में आप देखते हैं तो यहाँ ये हो सकता है कि हमारे पास कोई कैमरा का फोकस सही नहीं था, उसका लेंस में कोई डिस्टेंस के लिहाज से वो ठीक नहीं था, उसकी फोकसिंग नहीं की गई थी, तो ये एक इमेज हमारे पास इस वजह से ब्लर आ सकती है। फिर मोशन ब्लर हो सकता है कि हम मूवमेंट, कैमरा मूव कर रहा था या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और हमने उस टाइम पे इमेज लेने की कोशिश की तो वो मोशन ब्लर्ड आ गया। अब इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो वो डी ब्लरिंग के थ्रू हम इसको और डिटेल में देखेंगे, तो हम इसको डी ब्लरिंग करने के बाद हम इसको और इन्हांस कर सकते हैं। तो ये क्या है एक्चुअली, ये हम डिफरेंट किस्म के फ़िल्टरिंग अप्लाई कर रहे हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि ह्यूमन उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके और वो डिटेल्स दे सके। अब हम देखते हैं कुछ और एप्लीकेशन इसकी मेडिकल इमेजिंग में। ये हमारे पास एक MRI इमेज है ब्रेन का, तो अगर आप ये इस साइड पे देखें जो फर्स्ट इमेज है, इसमें हमारे पास सारे ब्रेन की इमेज आ रही है, ये स्कल है और दरमियान में हमारे पास ब्रेन के सेल्स हैं। अब इसमें अगर हम कोई डिजीज़ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूमर आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि वो ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर है, तो अगर कोई स्पेशलिस्ट होगा मेडिकल इमेजिंग का तो वो तो आइडेंटिफाई कर लेगा, लेकिन अगर हम इसके ऊपर कुछ प्री प्रोसेसिंग करें, इमेज प्रोसेसिंग कर लें, तो वो और भी इजीली आइडेंटिफाएबल होगा। और वो डिफरेंट मेथड्स हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने कुछ प्रोसेसिंग की और ये जो लाइट ग्रीन और रेड सा कलर आ रहा है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये वो ट्यूमर है जिसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही थी। तो इसके मल्टीपल मेथड्स हैं, हम डिटेल में देखेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये उसके फर्दर कहाँ तक फैला हुआ है, तो हम वो डिटेल देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये मेडिकल इमेजिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक्स हों, उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, तो हम उसको मेडिकल इमेजिंग में यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि CT स्कैन इमेजेस होती हैं, एक्सरे इमेजेस होती हैं, अल्ट्रासाउंड, बहुत सारे इमेजेस होती हैं जो कि डायग्नोसिस के लिए यूज़ हो सकते हैं, जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स हैं, तो वो हम सारे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये मेमोग्राम इमेज है। मेमोग्राम इमेजेस नॉर्मली लिए जाते हैं कोई ब्रेस्ट कैंसर आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वहाँ ये अगर फर्स्ट इमेज को हम देखें तो उसमें हम बहुत मुश्किल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम अगर कोई प्रोसेसिंग करते हैं उसके ऊपर तो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि कहाँ पर वो ट्यूमर या कैंसर सेल्स अवेलेबल हैं या वो कहाँ तक इफ़ेक्ट किया हुआ है उन्होंने। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस हैं जिसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो मशीन उसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है थ्रू द हेल्प ऑफ मेडिकल डॉक्टर। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें वो कैसे पता चलेगा कि ये ट्यूमर है, ये इन्फॉर्मेशन हम सारा मेडिकल डॉक्टर से लेते हैं और फिर वो मशीन में फीड करते हैं और वो प्रोसेसिंग के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। वो पूरे स्टेप्स हैं, हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे आगे भी। ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड इमेज है एक बेबी का जो कि वूम में है अभी, तो नॉर्मली हम उससे उसकी हेल्थ का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेबी जो है उसमें कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, या उसकी एज क्या है, या उसकी ग्रोथ किस तरह हो रही है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं अल्ट्रासाउंड इमेजेस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे तो वो हमें और इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2D इमेजेस हैं और हम उसको मल्टीपल डायरेक्शन से लेते हैं, तो हम उसको 3D में कन्वर्ट कर ले तो वो जो मेडिकल डॉक्टर है वो उसको इजीली उसमें नेविगेट कर सकता है, वो हर 3 डायमेंशनल में किसी भी एंगल से उसको देख सकता है। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये मेडिकल इमेजिंग में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि अगर हम उसमें प्रोसेसिंग करें। अब हमने इसके बाद बात की थी कि रिमोट सेंसिंग इमेजेस हैं। तो ये एक सैटेलाइट इमेज है एक सिटी का। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये मल्टीपल स्केल्स में लिया जाता है इमेज। इसको मल्टीपल फ़िल्टर्स लगाकर हम यहाँ इमेजेस ले सकते हैं, क्योंकि जब हम सैटेलाइट से इमेजेस लेते हैं तो वो RGB में इतनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता जितना कि दूसरे फ़िल्टर्स के साथ हमें वो वैल्यूज़ या वो इंफॉर्मेशन मिल सकता है। अल्ट्रावायलेट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, इस तरह के हम डिफरेंट किस्म के इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। ये रिमोट सेंसिंग इमेजेस हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है अगर हम ये देखना चाहें, फिर कहाँ पर डिफरेंट किस्म के फॉरेस्ट्स हैं या डेजर्ट एरिया कहाँ पर है। ये सिटी डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, क्राफ्ट के लिए यूज़ हो सकता है, और बहुत सारे डेवलपमेंट या फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिमोट सेंसिंग इमेजेस जो हैं ये मल्टी स्केल कलर्स में हो सकते हैं, या इसकी जो डायमेंशंस है वो मल्टीपल हो सकती है। तो ये हमें डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है सिटी प्लानिंग के लिए या किसी इम्प्रूवमेंट के लिए या डेवलपमेंट के लिए, तो हम उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ से ले सकते हैं। अब इसके ऊपर भी हम मल्टीपल प्रोसेसिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं। अगर हमें चाहिए कि ये जो वाटर फ्लो हो रहा है जो कि एक रिवर है, तो इसका लेंथ कितना है, ये कितना आगे जा सकता है, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम थ्रू इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग हम इसकी ये इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। सेम यहाँ पर अगर हम देखते हैं टेरेन मैपिंग के लिए, ये हम ऐसी जगहों की इमेजेस लेते हैं जहाँ पर नॉर्मली जाना मुश्किल होता है, वहाँ का एक्सेस मुश्किल होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हम हिमालय का इमेजेस देखें कि ये डिफरेंट किस्म के वहाँ पर माउंटेन्स हैं और फिर डिफरेंट उसके अंदर ट्रैक्स हैं और ग्लेशियर्स हैं, तो हम इसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है ये, और इसकी डिटेल लेना चाहें कि कहाँ पर वाटर हो सकता है, कहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कैंप की, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारे रिमोट सेंसिंग हमारे पास आती है थ्रू सैटेलाइट इमेजेस। नॉट ऑल ऑफ इट, बट सम ऑफ देम वी कैन कॉल इट फ्रॉम देयर। अगेन ये हमारे पास एक और उसकी एग्जांपल है रिमोट सेंसिंग की कि ब्रूनो फायर, ये एक सिटी जो था वहाँ पर आग लगी थी, तो वहाँ पर हमारे पास उसकी सैटेलाइट इमेज है। पूरा एरिया में काफ़ी आग लगी थी, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास सैटेलाइट से आ रही है कि ये कितने एरिया में फैल रहा है और इसकी डायरेक्शन किस साइड पे है। प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं उसका, डिज़ास्टर देख सकते हैं कि कितना उसने नुकसान पहुंचाया उसके बाद, और उसके डिज़ास्टर से पहले किस तरह था और डिज़ास्टर के बाद किस तरह था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू यहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास हरिकेन है, डेनिस में 1990 में आया था। तो ये हमारे सैटेलाइट इमेज है जो हमें उसकी डायरेक्शन बता रही है, उसकी डायमेंशन बता रही है कि कितने साइज़ में है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी स्पीड क्या है, ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू। नॉर्मली आपने देखा होगा कि वेदर फोरकास्ट में
जब आप देखते हैं टीवी चैनल्स पे, तो वो आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हैं वर्ल्ड की कि अब बादल कहाँ पर हैं और ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हवाओं का रुख किस साइड से है। तो ये सारे हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू ही आ सकते हैं। जब हम डिफरेंट प्रोसेसिंग करते हैं, उसको इन्हांस करते हैं, उसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। अगेन ये हमारे पास ओजोन लेयर है और ये एटमॉस्फेरिक स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं इमेज प्रोसेसिंग को, कि ये हमें अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड इमेजेस के थ्रू जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ओजोन कहाँ पर है, वो जहाँ पर होल हुआ है, और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, ये जिस एरिया में है और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, वो किन चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ओजोन लेयर जो है वो हमारे अर्थ को सेफ रखता है, बाहर से जो रेडिएशंस आ रहे हैं ख़तरनाक किस्म के, और उनको रिफ्लेक्ट करता है कि वो जो हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं वो अर्थ तक ना आए और जो लाइफ है यहाँ पर वो इफ़ेक्ट ना हो। तो एटमॉस्फेरिक स्टडी के लिए हम जो इमेजेस लेते हैं उसके ऊपर फिर हम डिफरेंट किस्म की प्रोसेसिंग करते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और वो हम फिर प्रेडिक्शंस के लिए और इवन आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि कौन से एरिया में क्या हो रहा है। एस्ट्रोनॉमी में हम यूज़ कर रहे हैं इमेजेस को, बड़े बड़े सैटेलाइट हैं जो कि हम आगे भेज देते हैं जिसमें इमेजिंग के टेक्नोलॉजीज़ हैं, और वो इमेजेस लेते हैं और फिर वो ट्रांसमिट करते हैं वहाँ से अर्थ पे, और फिर यहाँ पर उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की प्रोसेसिंग हम लगाकर, फ़िल्टर्स लगाकर उसको इन्हांस करते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि कहाँ पर स्टार्स हैं, क्रिएशन कहीं पर स्टार्स की हो रही है, कहीं पर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो वो कैसे हो रहे हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं मोस्टली इमेजेस को एस्ट्रोनॉमी में। हम गैलेक्सीज़ को देखते हैं कि हमारी गैलेक्सी कहाँ पर है और बाकी गैलेक्सीज़ किधर हैं, और वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, वो ग्रो कर रही हैं या वो स्क्वीज़ हो रही हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं थ्रू इमेजेस। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, मशीन विजन एप्लीकेशंस। सो व्हाई डू वी नीड इमेज प्रोसेसिंग फॉर मशीन्स? For understanding of machine, extract the image information for further computer processing. So what we do in machine vision applications, we extract the information in the images and then we give it to the computer for further processing. What are further processing? We will discuss it now. So the common applications are industrial machine visions for product assembly and inspection. अब हम इसको यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल जो एरिया है जहाँ पर कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है या डेवलप हो रही है, तो इंडस्ट्री में हम डिफरेंट किस्म के कैमरा लगाकर उसके थ्रू असेंबली देख रहे होते हैं कि क्या कोई चीज़ जो है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस होकर वो अपने प्रॉपर ट्रैक पे है भी कि नहीं, और दूसरा हम उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि क्या वो ठीक प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें कोई क्वालिटी का इशू तो नहीं है। अगेन हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटेड टारगेट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। अब हम डिफरेंट किस्म के टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं और ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमने उसको ट्रैक करना है, किसी सर्विलेंस कैमरे हैं जहाँ पर हम उसकी सिक्योरिटी रीज़न से हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन इंटर हुआ, कौन एग्ज़िट हुआ, इस तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए हम इवन ट्रैफिक कंट्रोल के लिए और बहुत सारे अदर इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। फिर फिंगरप्रिंट रिकग्निशन हो सकती है। हम ये कैसे करते हैं, हमारे पास एक इमेज है जो कि फिंगरप्रिंट्स हैं, उस प्रिंट्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं एक फिंगरप्रिंट से दूसरे फिंगरप्रिंट के दरमियान। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं ये, क्योंकि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी मुश्किल है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें या उसके डिफरेंसेस देखें कि एक फिंगरप्रिंट का दूसरे फिंगरप्रिंट के साथ क्या डिफरेंस है।
तो ये नॉर्मली अगर हम मशीन से करें तो वो सबसे आसान होगा और सबसे फास्ट रिकग्निशन होगी उसकी। फिर अगेन मशीन प्रोसेसिंग ऑफ एरियल एंड सैटेलाइट इमेजरी फॉर वेदर प्रेडिक्शन एंड क्रॉप असेसमेंट। अब हम मशीन प्रोसेसिंग करते हैं कुछ ऐसे इमेजेस की जो हम थ्रू एयर लेते हैं, थ्रू सैटेलाइट लेते हैं, और उसको हम मशीन्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर क्रॉप्स हैं, कहाँ पर ओपन एरिया है, फील्ड्स हैं, और हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वेदर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशंस इसकी हो सकती हैं। अब अगर हम इसकी देखें, एक छोटी सी एग्जांपल ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन है। तो ये हमारे पास एक असेंबली लाइन है, एक ड्रिंक्स हैं, और वो ड्रिंक्स जो हैं वो बॉटल्स में फ़िल हो रही हैं। तो अगर इसको हम मशीन के थ्रू आइडेंटिफाई करें कि जो असेंबली लाइन है जिसमें बॉटल्स जो हैं वो एक ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं, तो वो मशीन जो है वो उसको आइडेंटिफाई करे कि ये जो एक बॉटल है वो फुल नहीं हुआ, तो इसको पैकेजिंग से पहले ही रिमूव कर दिया जाए ताकि वो क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो मुतासिर ना हो। और हम इसको यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस में, लेकिन ये उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। बॉटलिंग प्लांट ऑटोमेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम बाउंड्री इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। अब ये बाउंड्री तक हम पहुंचते कैसे हैं, ये हम मल्टीपल प्रोसेसिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो ये बाउंड्री अगर आप देखें तो इसके और हमारे पास डिटेल नहीं है, सिर्फ बाउंड्री है, लेकिन आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एनिमल है। तो ये हम जब बाउंड्री निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स की, तो उसके ऊपर हम मल्टीपल प्रोसेसिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, और उसके बाद वो बाउंड्री आ जाती है। और अब ये बाउंड्री क्योंकि आ गई है, तो ये हम मैच कर सकते हैं मशीन में, और हम वो इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं मशीन में कि मल्टीपल इमेजेस हैं एनिमल्स की, और उन सब की बाउंड्री की इन्फॉर्मेशन हमने रखी है। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ऑटोमेटिकली मशीन्स में कि ये कौन सा एनिमल है, क्योंकि ह्यूमन तो बड़ी इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन मशीन के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब हमारे पास आ जाता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास 4 इमेजेस हैं। अगर हम टॉप पे इमेज को देखें तो ये अगर ओरिजिनल इमेज हम लेते हैं और फिर हम उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, तो फिल्टर लगाते हैं, तो ये हमारे पास उसकी सेकंड टाइप आ जाती है। ये अब ऑब्जेक्ट है तो ज़ाहिर है ये हमारे पास 3 डायमेंशनल में होगा, लेकिन क्योंकि हमने इमेज 2D में ली हुई है, तो हम इसको आइडेंटिफाई करें कि ये क्या है और इसके क्या क्वालिटीज़ हैं, डिटेल क्या है। तो यहाँ पर उसके ऊपर हमने कुछ प्रोसेसिंग की है, तो वो हमें कुछ शेड्स बता रहे हैं, और ये हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बाउंड्री निकालना चाहें, तो हम क्या करते हैं कि इस एरिया को फिल कर लेते हैं कि जो हमने आइडेंटिफाई किया है, और उसको एक कलर से फिल कर देंगे, और फिर उसकी बाउंड्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम यहाँ पर कि ये उसकी बाउंड्री आ गई है। तो अब ये हमें उसकी डायमेंशन बता सकता है, उसका साइज़ बता सकता है, या उसमें अगर हम देखें कुछ डैमेज हुआ है तो वो हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब अगर हम ये आइडेंटिफाई करना चाहें कि क्या इसमें कोई डैमेज हुआ है, और इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के लिहाज से, तो अगर आप देखें तो अगर ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, तो यहाँ इसके जो कॉर्नर्स हैं वो डैमेज हुए हैं, ये प्रॉपरली अलाइन नहीं है और ये शेप नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसके जो इंटरसेक्शन जहाँ पर हो रहे हैं, जो लाइनें आपस में मिल रही हैं, तो हम उनको लेते हैं, और अगर आप देखें यहाँ पर हमने पॉइंट्स लगा दिए हैं, तो ये पॉइंट्स हम ले लेते हैं, और उसके बाद हम उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम ये कनेक्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कि ये जो है इसकी शेप ये होनी चाहिए, ये एग्जैक्ट इस तरह होना चाहिए। लेकिन जब हम ओरिजिनल को देखते हैं तो वो हमें एग्जैक्टली इस तरह नहीं मिल रहा, और उसमें डैमेज एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, और उन डैमेज एरियाज़ को हम हाईलाइट कर सकते हैं जब हम उसका इन्वर्स लेते हैं। यहाँ पर वाइट है और यहाँ जो डैमेज एरिया है वो ब्लैक है, तो जब हम इसको इन्वर्स कर देंगे तो वो हमें वो डैमेज एरिया बता देगा। इस तरह के और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऑटोमेटेड
इंस्पेक्शन के लिए मल्टीपल मेथड्स हैं हमारे पास। यहाँ पर सरफेस इंफॉर्मेशन हम लेना चाह रहे हैं, तो ये टेक्सचर की इंफॉर्मेशन है। हम डिफरेंट किस्म के टेक्सचर देखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स का, तो वो भी हम कर सकते हैं। हम कुछ अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं लेटर्स की फॉर्म में, या और डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशंस हो सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या है, तो वो भी हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं और एल्गोरिथम्स हैं जो हम अप्लाई करेंगे, तो वो हमें वो टेक्सचर या सरफेस की इंफॉर्मेशन हमें दे देगा। सेम यहाँ पर इंस्पेक्शन ऑफ आईसी मैन्युफैक्चरिंग है। अगर हम ये देखें कि ये जो आईसीज हैं ये कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर, या यहाँ पर कुछ मिसिंग है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्योंकि इंडस्ट्री में काफ़ी इंटेंसिवली स्पीड के साथ काम हो रहा होता है और एक ह्यूमन आई के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करे ऑब्जेक्ट्स को। तो अगर हम ये मशीन के थ्रू करें, कंप्यूटर के थ्रू करें, तो बहुत इजीली होगा और एक्यूरेट होगा और स्पीड के साथ होगा। तो यहाँ पर ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मल्टीपल हमारे पास मेथड्स हैं आइडेंटिफिकेशन के, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे कोर्स के ऑलमोस्ट एंडिंग पे। लेकिन उससे पहले हम ज़ाहिर है उसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेसिंग करेंगे, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास वीडियो सीक्वेंस प्रोसेसिंग। अब क्योंकि हम इमेजेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नॉर्मली हम करते क्या हैं कि हम इमेजेस नहीं ले रहे होते बार बार इमेजेस लेते हुए। हम करते क्या हैं कि हम नॉर्मली एक वीडियो कैमरा लगा लेते हैं और वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है ऑब्जेक्ट्स की, या वो असम्बली लाइन की, या हमने सर्विलियंस के लिए यूज़ करना है। तो अब हम वो इमेजेस वहाँ से लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम वीडियो देखते हैं वो एक्चुअली इमेजेस ही होती हैं फ्रेम बाय फ्रेम। टू डिटेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इन इमेज सीक्वेंस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब हम करते क्या हैं इसमें कि हम ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और वो मूविंग कैसे होंगे, क्योंकि एक फ्रेम में एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन एक होगी और नेक्स्ट फ्रेम में वो दूसरी लोकेशन पे चला गया होगा एक्स वाई की डायमेंशन में। तो अगर हम इस मूविंग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहें तो वो बहुत ईजिली हो जाएगा। कुछ एप्लीकेशंस की ये हो सकते हैं, डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ मूविंग टारगेट फॉर सिक्योरिटी सर्विलियंस। अगर हम सिक्योरिटी रीज़न से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि किसी एरिया में कोई इंटर तो नहीं हुआ, तो उसके लिए हम आइडेंटिफाई करें कि कोई चीज़ मूव तो नहीं हो रही। अगर कोई चीज़ मूव हो रही है तो हम उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करें। फाइंडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ मूविंग टारगेट्स, हम उसकी डायरेक्शंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। मॉनिटरिंग द मूवमेंट ऑफ ओरिजिन बाउंड्रीज इन मेडिकल एप्लीकेशन, और हम उसके जो मूवमेंट्स है मेडिकल इमेजिंग में वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्जरी के दौरान क्या हो रहा है और वो जो टूल्स हैं क्या वो प्रॉपरली वापस अपनी जगह पर रखे जा रहे हैं या नहीं, और जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं मेडिकल ऑपरेशन थिएटर में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम ले सकते हैं थ्रू इमेजेस जो आ रहे हैं वीडियो कैमरा के थ्रू। अब यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है उसकी, हम इसको देखते हैं कि ये एग्जांपल हमारे पास है कि हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, हम देखना चाह रहे हैं। ये अगर हम देखें टॉप पे ये एक ह्यूमन मूव कर रहा है, तो इसके साथ बैक पे डिफरेंट किस्म का नॉइज़ या इंफॉर्मेशन आ रही है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो स्टिल है। अब हम चाहते हैं कि जो सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करें, तो वो बहुत ईजीली यहाँ से हो सकता है। तो ये हम क्या करते हैं कि उसका बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क कर देते हैं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है और हम सिर्फ उस मूविंग ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो ये सिंपली मशीन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है कि हम कुछ ऐसे इमेजेस ले रहे हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट लाइट है, क्योंकि रात को हम देखते हैं सिंपल RGB इमेजेस जो हैं वो कलर में हमें नज़र नहीं आ सकती, तो वो या हम अल्ट्रा वायलेट इमेजेस लेते हैं या नियर इंफ्रारेड नॉर्मली हम यूज़ करते हैं।
तो वो इमेजेस जो हैं या थर्मल इमेजेस यूज़ करते हैं, कैमराज यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको दोबारा कि आप देखें कि कोई ह्यूमन मूव कर रहा है, तो आप कहाँ पर स्टिल एरिया है, तो ये बैकग्राउंड जितनी भी है आप देखें वो स्टिल है। और अगर आप फोकस करें इस मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली। सारे जो स्टिल एरिया है उसको रिमूव कर दिया और मूविंग ऑब्जेक्ट को हम अलग कर देते हैं। तो ये हम सर्विलेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सिक्योरिटी के लिए और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब हम आते हैं ट्रैकिंग की तरफ कि अगर हमने ट्रैजेक्टरी ट्रैक करना है तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रैक कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें सिंपल उसको पहले मॉनिटर करने के लिए बताना है किस ऑब्जेक्ट को आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं। तो हम करते क्या हैं कि हम उसका एक छोटा सा सैंपल लेंगे और उस सैंपल को हम फिक्स कर देंगे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा सैंपल आ गया और इस सैंपल को हम करते क्या हैं कि उसको मॉनिटर करने के लिए हम बता देते हैं मशीन को कि अब इसको मैंने मॉनिटर करना है और मुझे बताएं कि अब ये किस डायरेक्शन में जाएगा या थ्रू आउट हमने मॉनिटरिंग करना है तो ये कैसे जाएगा। तो अब देखें कि ये ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच है और वो क्योंकि उस सैंपल को ही देख रहा है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो ट्रैकिंग इसकी हो रही है। जब तक कि वो सैंपल रहेगा तब तक वो ट्रैक हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें कि वो जिसका हमने सैंपल लिया है वो टाइम के साथ ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो जो ट्रैकिंग है वो पॉसिबल नहीं रहेगी। तो ये हम ट्रैकिंग कर सकते हैं व्हीकल्स की भी, हम एरोप्लेन्स की भी और हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं ट्रैकिंग के। अब हम जब एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं तो दो किस्म के हो सकते हैं उसके एप्लीकेशंस, या जब हम इमेजेस ले रहे होते हैं हम दो किस्म के ले सकते हैं। बाय सिंगल कैमरा ट्रैकिंग फाइंड आउट व्हाट इज़ द azimuth and elevation of that particular object with respect to certain difference coordinate system। हम कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं, हम उसमें ये दो वैल्यूज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, azimuth एंड एलिवेशन उसकी देख सकते हैं अगर हमारे पास सिंगल कैमरा है। अब अगर हमारे पास दो अलग से कैमरे हैं और एक ही ऑब्जेक्ट को वो मॉनिटर कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, azimuth और एलिवेशन तो ले सकते हैं, कैन आइडेंटिफाई एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब क्योंकि हम दो अलग कैमरा यूज़ कर रहे हैं और वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक ही ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हमारे पास वो 3 डायमेंशनल में आ सकता है और हम वो 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन जो है वो XYZ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लोकेशन locating those locations in different frames we can find out that over the time which path the object is following. So once we locate the object in 3-dimensional then we can also identify the path and also can predict on which direction it will go. So उसकी movement को हम monitor कर सकते हैं अगर हम objects in 3D identify कर लें। 2D में भी हो सकता है लेकिन वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होगा। अगर हम उसकी 3 डायमेंशनल इमेज लेते हैं तो वो हम easily आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आल्सो वी कैन डिटरमिन दैट व्हाट इज़ द ट्रेजेक्ट्री एंड द मूविंग ऑब्जेक्ट फॉलोज। हम उसकी ट्रेजेक्ट्री, हम उसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी मूवमेंट भी ईजीली मॉनिटर कर सकते हैं। 2 कैमराज कैसे यूज़ होंगे हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे डिटेल में। अगर हमारे पास सिंगल कैमरा है तो नॉर्मली हम सिंगल कैमरा इमेजेस लेते हैं और हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। अब हमने इसके बाद बात की थी कि हम थर्ड मोटिवेशन जो है हमारे पास वो है कि हम कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं और हम उसको कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये अगर आपको याद है स्टार्ट में हमने लेक्चर की बात की थी तो उसमें हम इमेज के जो फॉर्मेट हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कौन सा फॉर्मेट क्या है, उसका साइज़ क्यों छोटा आ रहा है, वो किस तरह रिप्रेजेंट हो सकता है। तो नॉर्मली हम उसको देखते हैं कंप्रेशन के लिहाज से।
तो इमेज कंप्रेशन किस तरह होगी? एन इमेज contains redundant information which can be exploited for achieving compression. अब ये हमें पता है, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम इमेज में कुछ चीज़ें रिडंडेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल स्काई की इंफॉर्मेशन है या बैकग्राउंड है जो कंटिन्यूसली सेम इंफॉर्मेशन आ रही है, तो हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कंप्रेशन के लिए. 3 टाइप ऑफ रिडंडेंसी हो सकती है. द फर्स्ट काइंड ऑफ रिडंडेंसी इज कॉल्ड पिक्सल रिडंडेंसी. The second kind of redundancy is called coding redundancy. The third kind of redundancy is called psychovisual redundancy. तो हम इन तीनों टाइप्स को डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताते हैं कि अगर पिक्सल redundancy होगी तो वो किस तरह की होगी. अब यहाँ पर अगर आप देखें इस इमेज में, तो हमारे पास ये इमेज आ रही है एक मॉडल की, और यहाँ हम अगर इस एरिया को कंसिडर करें तो इसको हम सेम देख रहे हैं कि ये कलर जो है यहाँ पर सेम आ रहा है, इसकी इंटेंसिटी जो है वो सेम आ रही है. तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. ये पिक्सल इंफॉर्मेशन है और ये पिक्सल इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली सेम आ रही है. तो हम इसको अगर लें तो ये इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि ये इसको हम कंप्रेस करें, इसकी एक सैंपल ले लें और बाकी सबको हम रिमूव कर दें. तो ये हम 2 एप्लीकेशंस इसकी हैं. आपको थोड़ा बहुत बताया था मैंने कि स्टोरेज स्पेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हम जब स्टोर कर रहे हैं तो क्योंकि इमेजेस के साइज़ काफ़ी हैवी हो सकते हैं, तो हम उसको कंप्रेस कर लें. और आजकल क्योंकि डिजिटल इमेजिंग बड़ी इजीली हो गई है, कैमरे हमारे पास काफ़ी आ गए हैं, तो हम उसको जब यूज़ करते हैं तो बहुत सारे इमेजेस ले लेते हैं. तो वो इमेजेस का साइज़ एक इमेज का साइज़ तो कम होता है, लेकिन अगर हम मल्टीपल इमेजेस रखते हैं तो वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं. तो हम अगर उसको कंप्रेस कर लें तो हम उसकी स्पेस को कम कर सकते हैं. और दूसरी रीज़न हो सकती है कि बैंडविड्थ रिडक्शन. अगर हम किसी हैवी इमेज को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन लाइन, थ्रू इंटरनेट या थ्रू ब्लूटूथ और अदर डिवाइसेस हो सकते हैं, तो हम अगर उसको यूज़ करेंगे और हैवी साइज़ है इमेज का, डायमेंशंस काफ़ी हैं, और सेकंड उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत रिच है, तो हम वो बैंडविड्थ को काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं. अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, टॉप पे हमारे पास फर्स्ट इमेज आ रही है. अब उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उसको कंप्रेस किया, 55% हमने उसको टाइम्स उसको कंप्रेस किया. तो जब हम 55 टाइम्स उसको कंप्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि इस इमेज में और इस इमेज में बहुत कम फ़र्क है. हाँ, वो आइडेंटिफाई हो सकता है, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं आ रही. लेकिन जब हम उसको 156 टाइम्स कंप्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे डिस्ट्रॉक्शन आ रही है हमारे पास इमेज में. वो क्वालिटी नहीं रहती, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ रही. तो हमारे पास एक मेथड है लूसी कंप्रेशन का. रिमूव redundancy as well as also remove some of the information so that after removing those informations the quality of the reconstructed image is still acceptable. अब कुछ इंफॉर्मेशन भी होगी साथ इमेज में, हम उस इमेज को भी रिमूव कर इंफॉर्मेशन को भी रिमूव कर लेते हैं और साथ में हम उसकी जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है उसको भी रिमूव कर लेते हैं. तो जब हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं इमेज को तो वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में आ जाती है. हम इसको डिटेल में देखेंगे. ये थोड़ा सा आपको अभी से उसका कुछ फ्लेवर दे दूं कि ये एक किस्म की कंप्रेशन होती है. देयर विल बी सम लॉस और सम डिस्टॉर्शन एंड दिस इज टेकन केयर बाय व्हाट इज कॉल्ड द रेट डिस्टॉर्शन थ्योरम. तो हम ये एक एल्गोरिथम है, थ्योरम है, हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे. तो हम इसके थ्रू इस डिस्टॉर्शन को उसका ख्याल रख सकते हैं कि हमें कितनी डिस्टॉर्शन चाहिए या कितनी हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं. कंपेयर द स्पेस अकॉर्डिंग टू कंप्रेशन. अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम उसको कितना कंप्रेस कर रहे हैं और अगर उसकी इंफॉर्मेशन हम देखना चाहें कि वो हमें कितना रिड्यूस करके उसका साइज़ कितना कम हो रहा है, तो if the original image of size says 256 by 256 bytes, that is 64 kilobytes. तो अगर हम ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है 256 by 256 जो यहाँ पर हमने देखी थी, ये ओरिजिनल इमेज में है.
तो ये हमारे पास कितनी स्पेस लेगा, 64 किलोबाइट्स। अब अगर हम सेकेंड इमेज को लेते हैं जो कि कंप्रेस्ड हुए 55 टाइम्स, तो वो स्लाइटली अबव समथिंग अराउंड 10 किलोबाइट्स, तो वो कुछ 10 किलोबाइट्स तक का स्पेस ले सकता है। और अगर हम थर्ड को लेते हैं तो वो 500 बाइट्स और इवन लेस देन 500 बाइट्स भी हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हम जब कंप्रेस करते हैं इमेज को तो उसका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है, वो कम स्पेस यूटिलाइज करता है। अब हम थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री देखते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की, कब ये स्टार्ट हुई और इसमें हमारे पास क्या प्रोग्रेशन हुई, किस तरह इम्प्रूवमेंट आए। इनफैक्ट एज अर्ली एज 1920s इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स वर बीन यूज। तो 1920 से हम इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए देखते हैं। उसकी हिस्ट्री है कि वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। The image processing techniques or digital images were used to transmit the newspaper pictures between London and New York, and these digital pictures were carried by submarine cables. The systems which was known as Bartalan system. तो ये हमारे पास एक सिस्टम था जिसमें हम 1920s में इमेजेस को ट्रांसफ़र किया जाता था, जो कि न्यूज़पेपर के इमेजेस थे, और वो थ्रू सबमरीन लाइंस वहाँ पर ट्रांसमिट होती थी और वो वहाँ पर पब्लिश होती थी। सो व्हेन वी ट्रांसमिट डिजिटल इमेजेस वाया सबमरीन केबल्स, तो हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। वन, ट्रांसमिटिंग साइट, फैसिलिटी फॉर डिजिटाइजिंग ऑफ द इमेज। अब हमारे पास पेपर फॉर्म में, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो पेपर फॉर्म में होते थे, तो अब उस इमेजेस को हम कैसे डिजिटाइज करें, तो उसके लिए हमें ट्रांसमीटर साइड पे डिवाइस चाहिए होती थी। और द रिसीविंग साइड हमें फैसिलिटी फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ द इमेजेस, वो उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें वो डिवाइस चाहिए थी। और इसको हम क्या करते थे, इसको हम क्या कहते थे, द पिक्चर वर बीन रिप्रोड्यूस बाय द टेलीग्राफिक प्रिंटर। तो उस टाइम पे टेलीग्राफिक प्रिंटर्स थे और ये हमारे पास उसकी पहली इमेज है जो नॉर्मली रिप्रोड्यूस होते थे। अब उसके बाद 1920s में फोटोग्राफिक प्रोसेसर फॉर अ पिक्चर रिप्रोडक्शन was introduced. The receiver, instead of using the telegraphic printer, the digital images or the code of digital images were performed on the tape, and photographic printer was carried on using these tapes. तो हम इसके बाद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई और टेलीग्राफिक प्रिंटर्स की बजाय वो हमारे पास एक फ़िल्म के ऊपर राइट होते थे, और वो फ़िल्म जो आप ने कभी देखे होंगे कि जो बड़े फिल्म्स होते हैं और वो नॉर्मली यूज़ होते हैं, एक हमारे पास डिवाइस होती है जो उसको ट्रांसमिट करती है। तो उस सिचुएशन में हम इसको उसमें ये इम्प्रूवमेंट आई कि बजाय इसके कि वो पेपर पे प्रिंट हो, तो वो एक फ़िल्म के ऊपर प्रिंट होना शुरू हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये उसकी क्वालिटी जो थी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई पेपर से जब हम आए थे, टेलीग्राफ से जब हम आए थे। डिजिटल कोड्स एक्चुअली ट्रांसफ़र होने के बाद उसकी फ़ोटोग्राफिक प्रिंटिंग शुरू हुई। अब उसके बाद 1920s से आगे 5 डिकेड्स तक उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई। वो स्टार्ट में हमारे पास जब हम कोडिंग कर रहे थे तो 5 ब्राइटनेस के लेवल्स थे, उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा था, और वो 1929 में वो 15 लेवल पे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ग्रे शेड यूज़ कर रहे थे वाइट से ब्लैक की तरफ जाने के, तो वो पहले 5 थे और फिर वो 15 लेवल पे चले गए। तो जब हम 15 लेवल पे चले गए तो वो इमेज की क्वालिटी और भी बेहतर हो गई और उसमें और भी डिटेल्स हम मेंशन कर सकते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि from 1926 for the next 35 years the researchers have paid their attention to improve the image quality or to improve the reproduction quality. अब रिसर्चर्स की ज़्यादा एम्फेसाइज इस पे था। इन 1964 उसमें बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने इन इमेजेस को
बेहतर करने की कोशिश की और जो मून से इमेजेस आ रही थी उनको कैसे प्रिंट किया जाए, उनके कैसे डिटेल से देखा जाए, उनकी ग्रेस स्केल जो है वो कैसे इन्हांस की जाए। तो ये इस पे काफ़ी ज़्यादा काम शुरू हो गया, क्योंकि जो इमेजेस आ रही थी वो थ्रू सैटेलाइट आ रही थी और वो सैटेलाइट से क्योंकि डिजिटल फॉर्म में था तो वो कैसे उसको कन्वर्ट किया जाए और उसको कैसे प्रिंट किया जाए। अब हम इमेज को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं तो उसका थोड़ा सा हम उसकी डिटेल देखते हैं। इसकी हिस्ट्री काफ़ी इमेज प्रोसेसिंग की हिस्ट्री जो है वो 20s से स्टार्ट होती है और उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट आई है टाइम के साथ। और जब हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर पब्लिकली अवेलेबल हो गए तो उसके बाद से इस पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई है। मिड 80s में इस पे बहुत ज़्यादा काम शुरू हुआ। अब इमेज रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वाई इन द इमेज, conventionally the x coordinate is taken vertically down and the y axis is taken horizontally towards right. अब हम x जो है वो हम डाउन की तरफ लेंगे और y जो है वो हम नॉर्मली हॉरिजॉन्टली लेते हैं। तो हम इस x और y को लेते हैं और इसमें हम कोई एक पॉइंट ले लें। तो कोई एक पॉइंट जो है वो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? The images is nothing but two-dimensional intensity function which is represented by f, x और y। तो हम अगर ये कहें कि ये images जो हैं ये actually f of ये एक फंक्शन है जो कि जिसमें x और y की कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हम यहाँ देखें तो वो डॉट प्रोडक्ट हैं दो वैल्यूज़ का, r और i का। तो r और i हमारे पास क्या हो सकते हैं? वन टर्म इज r(x,y) एंड द अदर टर्म इज i(x,y). r is the reflectivity of the surface of the corresponding image point from where the light gets reflected। क्योंकि जब हम इमेज लेते हैं तो वो इमेज लेते हुए कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी वैल्यू है हमारे पास। और आई जो है रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट जो है हम जहाँ पर लाइट पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी है। तो आई उस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करे और आर जो है वो रिफ्लेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास वो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम देखें कि ये जो इमेज है इसमें x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हमारे पास नॉर्मली इन्फिनिट वैल्यूज़ होती हैं। देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट विच इन्फिनिट पॉसिबल इंटेंसिटी वैल्यूज़। तो वो इंटेंसिटी वैल्यूज़ जो हैं वो इनफाइनाइट नंबर में हो सकती हैं। अब क्योंकि कोई चीज़ इनफाइनाइट हो x और y की वैल्यूज़ तो हम उसको इंटेंसिटी वैल्यूज़ जो हैं आर की और आई की, तो वो अगर इनफाइनाइट हो तो हम उसको फिर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कहीं पर हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? हम उसकी सैम्पलिंग ले लेते हैं। तब सैम्पलिंग करने के लिए हमें क्या करते हैं? सिंपल उसको रेगुलर ग्रिड में कन्वर्ट कर देते हैं कि एक इमेज है उसके फिक्स ग्रिड हो सकते हैं और वो ग्रिड की वैल्यूज़ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। टेक सैम्पल्स ऑफ दैट इमेज ऑन अ रेगुलर ग्रिड। First level representation of an image in digital computer is spatial digitization by a grid। तो हम उसको डिजिटाइज करते हैं, हम उसको डिजिटली उसको कन्वर्ट करते हैं जब हम उसको ग्रिड की फॉर्म में ले आएँ। तो जब वो ग्रिड की फॉर्म में आ जाएगा, once we get this sample values at every point the value of sample is again continuous। अब हम क्योंकि ग्रिड की वैल्यूज़ ले रहे होंगे तो एक सैंपल लेते हैं, तो अब वो सैंपल भी हमारे पास इनफाइनाइट हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वो जो इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं उसको भी हम फिक्स कर दें। सो इट कैन एज्यूम एनी ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकते हैं जो मैंने आपको बताया। फॉर दैट द सेकेंड ऑपरेशन दैट वी हैव टू डू इज़ डिजिटाइजिंग ऑफ द इंटेंसिटी वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट सैंपल कॉल्ड क्वांटाइजेशन। हम इसको क्वांटाइज करते हैं, उसकी कोई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो सकती है और वो कौन कौन से वैल्यूज़ हम सेव कर सकते हैं।
अब अगर हम इसको देखें तो एक इमेज को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो f जो वैल्यूज़ हैं वो x और y की वैल्यूज़ हो सकती हैं और वो फिक्स नंबर हो सकते हैं। n हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं और उसमें m नंबर ऑफ रोज़ हो सकते हैं। तो जब हम इसने फिक्स कर दिया तो हम अब इसको स्टोर कर सकते हैं। ईच ऑफ दिस एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज़ कॉल्ड पिक्सल और पैल। हमारे पास अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिचुएशन में f ऑफ एक्स वाई की सिचुएशन में, तो हम इसको फिर कहेंगे कि ये हमारे पास पिक्सल वैल्यूज़ हो गए कि वो कितने इंटेंसिटी वैल्यूज़ उसमें क्या हैं और उसमें रिफ्लेक्शन वैल्यूज़ क्या हैं। तो अगर हम उसको इस सिचुएशन में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन है हमारे पास और उस इंफॉर्मेशन को अब हम स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो फिक्स वैल्यूज़ हैं। फिक्स वैल्यूज़ का मतलब ये है कि उसकी रेंज का हमें पता है कि वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती हैं। क्वांटाइजेशन में अगर हम देखें, मैंने आपको जिस तरह बताया कि हम वो वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो किस तरह हो सकते हैं। ईच ऑफ दिस सैम्पल वैल्यूज़ आर क्वांटाइज एंड टिपिकली फॉर इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन द क्वांटाइजेशन इज़ डन यूजिंग 8 बिट्स फॉर ब्लैक एंड वाइट इमेजेस। अब अगर हम 8 बिट्स यूज़ करते हैं ब्लैक और वाइट के लिए, तो वो क्या हो जाएंगी 24 बिट्स फॉर कलर इमेजेस। अगर 24 बिट्स होंगी अगर हमारे पास कलर इमेजेस है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास 3 कलर हैं RGB, तो RGB की वैल्यूज़ अगर हम लेते हैं और 8 बिट यूज़ कर रहे हैं एक कलर के लिए तो 24 बिट्स हो जाएंगे। अगर हम ब्लैक और वाइट में कर रहे हैं तो 16 बिट टोटल हो जाएंगे। For each of plan, if use 8 bits for quantization, then it gives us 28 bits for which the use of representation of digital color image। तो अब जाहिर है अगर हम 8 बिट्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़, कलर वैल्यूज़ को, अगर R की वैल्यूज़ हैं तो वो R मीन रेड कलर है, तो वो रेड कलर हम 8 तक वैल्यूज़ यूज़ करें तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये R की इंटेंसिटी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब वैल्यूज़ अगर हम सैम्पल लेते हैं, अगर मैं यहाँ से एक सिंपल स्क्वायर लेता हूँ तो उनकी कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी और वो वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस सिचुएशन में हो सकती हैं। हमारे पास कौन से स्टेप्स होते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लिए। नॉर्मली हम मल्टीपल स्टेप्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ इमेज एक्विजिशन। हम इमेज कैसे लेते हैं, उसको कैसे स्टोर करते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। द नेक्स्ट स्टेप प्रोसेसिंग विच आर नोन एज प्री प्रोसेसिंग विच टेक्स केयर ऑफ रिमूविंग द नॉइज़ ऑफ और इन्हांसमेंट ऑफ द कंट्रास्ट एंड सो ऑन। हम डिफरेंट किस्म की प्री प्रोसेसिंग करते हैं, उससे हम नॉइज़ को रिमूव करते हैं, हम कंट्रास्ट को बेहतर करते हैं। फिर उसके बाद है थर्ड ऑपरेशन सेगमेंटेशन। हम दैट इज़ पार्टीशनिंग एंड इनपुट इमेज इनटू फॉर डिफरेंट पार्ट्स। हम उसको सेगमेंट करते हैं, हम उसके मल्टीपल पार्ट्स बना लेते हैं और वो मल्टीपल पार्ट्स किसी बेसिस पे होते हैं, तो वो हम ऑब्जेक्ट्स की डिफिनीशन बताते हैं कि ये हमारे पास टेबल है, ये हमारे पास चेयर है, इस तरह के सेगमेंट्स बना लो। तो कितने इसमें चेयर्स हैं, कितने हमारे पास टेबल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इंफॉर्मेशन देते हैं और उसकी बेसिस पे वो सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन के बाद क्या होगा, आफ्टर सेगमेंटेशन द नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्सट्रैक्ट सम डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट्स विच आर सूटेबल फॉर फर्दर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। अब हम इसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती हैं, उसकी डायमेंशंस हो सकते हैं, उसका साइज़ हो सकता है, उसकी लोकेशन हो सकती है, उसके कलर हो सकते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो वो ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन हम लेते हैं ताकि हम उसको आगे यूटिलाइज़ कर सकें। देन वी हैव रिकग्निशन। अब वो आ गया तो अब हम उसको रिकग्नाइज करते हैं। बाय गेटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स इंटरप्रेटेड और रिकग्नाइज व्हाट द ऑब्जेक्ट इज़। अब हमारे पास वो इंफॉर्मेशन तो आ गई, अब हम इसको रिकग्नाइज करते हैं कि फॉर एग्जांपल चेयर है और वो एक ऐसी डायरेक्शन में पड़ी हुई है कि उसके हमारे पास जो लेग हैं वो सारे विजिबल नहीं हैं। तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एग्जैक्टली चेयर है, क्योंकि ऐसे चेयर भी हो सकते हैं कि उसका 3 लेग्स हों, ऐसे भी हो सकते हैं कि उसका 1 लेग हो।
डिपेंड करता है हमारे पास चेयर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे। तो हम वो ऑब्जेक्ट्स रिकग्नाइज कैसे करेंगे, उसके बाद रिकग्निशन फेज़ में होगा। और फिर हमारे पास जो लास्ट स्टेप आता है वो नॉलेज बेस है, वेयर द नॉलेज बेस हेल्प्स फॉर efficient processing as well as for inter-module cooperation of all these previous processing step। हम इसको यूज़ करते हैं नॉलेज बेस में, हम वो सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ताकि फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसका सिंपल ब्लॉक डायग्राम आ गया हमारे पास कि हम इमेज एक्विजिशन करते हैं, हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, फिर उसकी रिकग्निशन करते हैं और उन सब को हम नॉलेज बेस में रखते हैं ताकि हम फर्दर उसको यूटिलाइज़ कर सकें। ये हमारे पास चंद एक रेफरेंसेस आ रही हैं कि हमने मटेरियल कहाँ से लिया और हम कहाँ से इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो है गंजालेस की और वो है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। बेसिक बुक है और आप इसको ले सकते हैं और उसमें ये सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो हमारा लेक्चर आज कंप्लीट होता है। हमने देखा कि हमारे पास डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की डिफिनीशन क्या है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, हमारे पास कौन सी टेक्निक्स हैं जहाँ पर हम इमेज प्रोसेसिंग को यूज़ कर सकते हैं, हम एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, हमारे पास कौन से 3 बेसिक मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, वो हमने स्टडी किया। फिर हमने ये देखा कि हम इमेज को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इमेज जो है वो इन्फिनाइट वैल्यूज़ हो सकते हैं, तो अगर हम उसको महदूद कर लें तो हम वो पिक्सल इंफॉर्मेशन ले लें और उस पिक्सल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लें तो हम ये हमारे लिए पॉसिबल होगा और हम उसको डिजिटाइज़ कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। अब तक के लिए इतना और अल्लाह हाफिज़।